Guys, good evening, adab, sat sri akal, good morning to all those who are watching my video. My name is Shipra and I'm here with a new video on YouTube. So the new moon just came in yesterday and the solar eclipse just got over today, and with the solar eclipse and new moon there is lot that is unfolding for a lot of people on the planet. So I thought, why not go ahead and make a video for all those who have looking for answers from the universe and believe in the power of the universe, right? I know many of people who are watching this video are here for a reason. So before I start, let me tell you, if you have been looking for some answer and if you get that answer through this video, then believe that this is a direct message from heaven. So I'll be covering earth sign, which is Taurus, Virgo and Capricorn. So the first pile here, the pile that I'm going to cover today is only for Taurus sign, and then from there on I'll be covering Virgo and Capricorn. So Taurian, let's see what does future holds for you, what is the message from heaven for you. Good luck. I wish when I open this pile it has a lot of good stuff for you and I'm able to help deliver the message of divine for you. Let's go ahead. Sorry, 10 of cups, queen of wands, queen of swords, right. So पहले ये तीन कार्ड्स देख लेते हैं. सो वी हैव टोटली 5 कार्ड्स हियर. तो पहले हम इन कार्ड्स की एनर्जी पढ़ते हैं, राइट, टू सी व्हाट डज टॉरियन have in their bucket in the future. So this 10 of cups, queen of wands and queen of swords. Guys, I hope you are able to see the cards very clearly. If not, let me just show you once. This is your 10 of cups. This is your queen of wands. And this is your queen of swords. Right. So lot of queens here and the first card itself is 10 of cups, right? So lot of emotions are here in play, lot of emotions. And I clearly get one message that the female energy over here is very high, and there are few girls who have been really looking to start a family, or have been looking for the conflict that has been going on in their family to get resolved. So the first card is a very happy family card, जिसमें दो husband wife हैं and there are 2 kids who are finally playing together. Right. So I feel the two of you in a relationship over here in this card is majorly a married couple जिसके बीच काफ़ी दिनों से चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं. लाइक क्लोज टू, कुछ लोगों के लिए ये 1 से 2 साल भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए क्लोज टू 6 to 7 years ऑल्सो. शुरुआत में चीज़ें बहुत अच्छी थी जब आप लोगों की शादी हुई थी, बट धीमे धीमे चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लगी. इनफैक्ट मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ द स्पाउस, आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, कोई एक है हु इवन
stepped out of this marriage. When I say stepped out of this marriage does not mean taking divorce or getting separated. It means कि कहते हैं ना, जब घर पे खुशी नहीं मिले तो आप उसको बाहर ढूंढते हो, तो दोनों में से कोई एक ऐसा है जो ये खुशियाँ बाहर भी ढूंढने गया था, जिसका आपको भी बहुत अच्छे से पता है. आइदर ऑफ द स्पाउस, एज आई सेड, एनी ऑफ द स्पाउस क्लियरली नोज कि भाई जो चीज़ घर पे पूरी नहीं हो रही थी वो बाहर पूरी हुई, और इसकी वजह से जो डिस्टेंस आपके बीच बढ़ रहे थे वो और भी वर्स हो गए. एंड टू एन एक्सटेंड कुछ लोगों के बीच ये नौबत तक आ गई है कि बात डिवोर्स तक पहुंच गई है. बट आई डोंट नो, अगर जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली द मैरिड कपल, बिकॉज यहाँ पे मैरिड कपल्स की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है. तो जो भी मैरिड कपल्स मुझे सुन रहे हैं, आप एक बात का खास ध्यान देना. वो बात ये है कि मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों सोलमेट्स हो. ये इस लाइफ का कनेक्ट नहीं है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्ट है. एंड जस्ट बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहा, इतना ज़्यादा स्ट्रगल रहा, और जिसे कहते हैं ना कि एक कहानी जो बहुत बुरी तरह से शुरू हुई, उसमें सब कुछ बुरा बुरा होता ही चला गया. तो इतना ज़्यादा चीज़ें बुरी होती चली गई कि आप दोनों में से किसी ने ये सोचा ही नहीं कि चीज़ें सुधारी भी जा सकती हैं. इनिशियली ऐसा नहीं कि आपने सुधारने की कोशिश नहीं की, आपने सुधारने की कोशिश की, बट देन चीज़ें वर्स होती चली गई. और इस वर्स होने के केस में ऐसा हुआ, द फीमेल एनर्जी और द वाइफ, आप तो पूरी तरह से इमोशनली तो आप पूरी तरह से ड्रेन हो चुके हो, इनफैक्ट गिव अप कर चुके हो, और अब आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में देने के लिए या इस रिश्ते को संभालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है. तो प्लीज़, अगर आप मेरे को सुन रहे हो, सो आई हैव अ रिक्वेस्ट दैट आई एम मेकिंग कि ये जो आपके दिल में बैठ चुका है ना कि इस रिश्ते में अब संभालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ, ये आप तक अगर पहुँच रहा है, सो आप जान लो कि भगवान भी चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को दूसरा चांस दो. प्लीज़ प्लीज़ टॉरियंस, इफ़ यू आर अ टॉरियन एंड इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि अपने रिश्ते को आप दूसरा चांस दें. क्योंकि डीप डाउन both the spouses, both husband and wife love each other like truly, madly, deeply. It's a very strong connect, जो कि इस भसड़ के चलते, इस दुख तकलीफ परेशानियों के चलते आपको रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है. तो इसके पहले कि आप कोई बुरा कदम उठाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इस रिश्ते को एक चांस दें. यहाँ पे मुझे कप्स दिख रहे हैं, तो दो, तो ऐसे तो ये मैसेज मैं टॉरियंस के लिए बना रही हूँ, बट Cups is water energy also, which tells me Cancer, Scorpio and Pisces. तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस भी हो सकते हैं. स्पेशली द फीमेल एनर्जी, यू कैन बी आइदर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, बिकॉज द कप्स इज वाटर विच रिप्रेजेंट्स इमोशन, विच इज़ अ वाटर एनर्जी, वाटर साइंस, विच आर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस. सो गाइज, प्लीज़ प्लीज़ एक बार सोचें इसके पहले कि आप कोई गलत कदम उठाएं. और आप ये मैसेज देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सोचें, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट कार्ड, इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, द वेरी नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें ये दिख रहा है कि द कार्ड इज क्लियरली शोइंग रीयूनियन. एंड आपका जितना भी स्ट्रगल हुआ है, जितना भी आपके रिश्ते में तकलीफ़ या परेशानी रही है, वो तकलीफ़ और परेशानी ख़त्म होने का पूरा समय आ गया है. एंड लेट मी टेल यू, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑल्सो, कि आपके रिश्ते में कहते हैं ना आग लगाने का काम. आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी यूजिंग वर्ड्स लाइक दिस, बट अब क्योंकि दो लोगों के रिश्ते बचाने की बात है, तो आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. कोई एक फीमेल है जो कि आपकी फैमिली में भी हो सकती है, जो कि बाहर भी हो सकती है, या एनी फीमेल, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो हु दिस फीमेल विल बी, आपके रिश्ते को बिगाड़ने में पूरा हाथ रहा है. सो देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर. बट कैसा भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी रही हो, गॉड इज़ टोटली बाय योर साइड, हेंस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई सी यू ओ वेरी हैप्पी ब्लिसफुली मैरिड वुमेन. एक एफर्ट डालो, एक इनिशिएटिव लो, और प्लीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो अगर नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी है कौन. बिकॉज ये कोई ऐसा है जो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए, कोई ऐसा है जो अंदर ही अंदर आपके रिश्ते को काट रहा है और आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है. प्लीज़ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें, प्लीज़ पता लगाने की कोशिश करें, और आपका रिश्ता जो बहुत बहुत खूबसूरत है उसे ख़राब ना होने दें. ये मेरी आपसे जेन्युइन रिक्वेस्ट है.
आ, कोई ये एस जो तीसरा कार्ड मुझे कह रहा है विच इज़ अगेन द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई अगेन द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इज अगेन अ फीमेल एनर्जी एंड कोई है आप दोनों के रिश्ते में जिसकी डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा चली है, बहुत ज़्यादा चली है कि ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं कि उनके हस्बैंड्स अपनी मदर की इतनी ज़्यादा बात सुनते हैं कि उन्हें तीसरे की बात समझ ही नहीं आती है, आपकी भी बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए रिश्ता यहाँ तक इसीलिए रिश्ते में ये नौबत पहुँच गई है। तो भाई एक थर्ड पार्टी के चलते, इट कैन बी अ मदर इन लॉ, इट कैन बी एनी अदर थर्ड फीमेल, एक थर्ड पार्टी के चलते एक खूबसूरत दुनिया को ख़राब करना किसी भी तरह की समझदारी नहीं नज़र आती है मुझे इसमें। तो आप एक बार आप दोनों, आई थिंक यू बोथ नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग इन योर लाइफ एंड नीड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि देखिए कहीं भी किसी को किसी के साथ नहीं जाना है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और इस रिश्ते की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है और किसी और की नहीं है। करेक्ट। अपने हस्बैंड के साथ बैठें, उन्हें समझाएं कि भाई ठीक है जो हुआ वो हुआ, एक नए सिरे से शुरुआत करें, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है और जब जागो तब सवेरा, ये भी एक बात गलत नहीं है। तो जिस भी तीसरी पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये मैसेज आपको ये बता रहा है कि कोई थर्ड फीमेल एनर्जी रही है जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। पर एक चीज़ ये भी मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बता दूं कि वो थर्ड एनर्जी जो भी फीमेल एनर्जी है उसका तो भाई पत्ता साफ होने वाला है। मतलब आप ये समझ लो भगवान ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने वाले हैं कि पत्ता साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। तो अपने रिश्ते को बचाने में पूरा फोकस डालो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर टू कार्ड्स। सो द अदर टू कार्ड्स, सी थ्री ऑफ wands and then see knight of cups. Sorry if you're not able to see it clearly. Knight of cups. भाई तो देखो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पांचों कार्ड में एक एनर्जी बहुत क्लियर है कि ये रिश्ता अगर आप लोग तोड़ोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि जो है ये रिश्ता बचने के पूरे आसार हैं। आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्ट है एंड आई एम श्योर बहुत सारे केसेस में ये लव मैरिज रही है जो कि बहुत ब्यूटीफुल रही है। तो उस ब्यूटीफुल लाइफ को वापस लाना दोनों तरह से आप दोनों मियाँ बीवी के हाथ में है, क्योंकि ये जो आपको थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिख रहा है ये क्लियरली दिखा रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट ऑलरेडी या तो हो चुका है कुछ लोगों के लिए या तो कुछ लोगों के लिए होने वाला है। और ये जो नाइट ऑफ कप्स है ये कार्ड कि भाई ये थिंक ऑफ दिस कार्ड एज योर हस्बैंड एंड ये जो है एकदम रेडी हैं भाई कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं 4 कदम आगे बढ़ के इस रिश्ते को बचाऊंगा, है ना। तो भाई प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ 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 अपने रिश्ते को बचाएं। अगेन द कप एनर्जी, सो भाई कप एनर्जी में मेल एनर्जी भी है, कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, राइट। So guys and girls, married ones who are listening to me, first message is for the married couples. Save your marriage. It's a soulmate connect. It's a love marriage for a lot of them watching this. And there was a third party. उसके पत्ता साफ होने का पूरा टाइम आ गया, गिव अप ना करें। तो अब आते हैं अनमैरिड लोगों पे। भाई अनमैरिड अगर लोगों की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत लड़के और लड़कियां, बहुत सारे लोग अपने शादी होने का इंतज़ार करें। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ है कि रिश्ता बनते बनते टूट गया है। तो रिश्ता बनते बनते टूट गया है, परेशान ना हो इसलिए, क्योंकि जो टूटा वो इसलिए था क्योंकि भगवान आपको सोना देना चाह रहे हैं, तो आप तांबे पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो, है ना। तांबे पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का है भाई, बिकॉज जो आपका राजकुमार या राजकुमारी है वो ऐसी है कि वो एकदम आपके लिए राइट है एंड वो आपकी लाइफ में बाय अक्टूबर सितंबर या लेटेस्ट बाय जनवरी बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं या जो हु आर विलिंग टू गेट इंगेज्ड, बी वेरी होपफुल आफ्टर सितंबर
Your time is starting for real good, and this is both for the males and females who are unmarried or who are even divorcees and who are looking for a partner. It is applicable both for the males and females who are unmarried and who are divorcee and looking for a partner. ये आप दोनों के लिए वैलिड है कि आफ्टर सितंबर देयर इज a huge energy shift that is happening for you, एंड आपको आपका राजकुमार राजकुमारी मिलने वाला है. कई लोगों की शादी तो मार्च तक 100% हो जानी है, मार्च तक. एंड आई सी दिस समवेयर अराउंड यूपी साइड के लोग मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में. यूपी साइड, मेरठ, रांची, झारखंड, सॉरी नॉट झारखंड, मेरठ, रांची, झांसी, इस टाइप के स्टेट्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, राइट. तो भाई परेशान ना हो, राजकुमार राजकुमारी आने वाला है. सितंबर से टाइम बहुत बहुत ही अच्छे के लिए बदल रहा है. और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली जो लव लाइफ में बहुत ब्रोकन रहे हैं या जिनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी. मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है divinechild7777. वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वरना आप इसी पे मुझे divinechild7777@gmail.com पे आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं. देयर इज़ अ क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स जो कि स्पेशली पीस और लव अट्रैक्ट करने का क्रिस्टल होता है. आप लोगों के लिए क्रिस्टल बहुत स्ट्रांगली काम करेगा. सो दिस वॉज द मैसेज फॉर दिस पाइल. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, डोंट हेजिटेट to inbox me and follow my Instagram on divinechild7777. Drop me a direct message and I'll be more than happy to help you. Comments डालना ना भूलें. अगर आपको मेरा ID ना याद रहे, YouTube पे comments का ऑप्शन भी बहुत ओपन रहता है. So भाई be happy. I'm happy that I'll be more than happy that जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर. अपना फीडबैक डालिएगा और बताइएगा कि जो आपने सुना उसमें से आपको अपने लिए कितना सही लगा. और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए मुझसे, I'll be more than happy to help. Till then, take care. Goodbye. Alvida. Sat Sri Akal. Love you. Bye-bye. Lot of blessings.